اور جس کا ذکر کر رہا ہے وہ بھی لاجواب ہے۔ حضرات واقعی میں ہم ان کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے تو یہ یقین مانیے میرے دوستو ہماری زندگی بھی لاجواب ہو جائے گی۔ آپ تمام بیدار ہیں کہ بیکار ہیں؟ اگر بیدار ہیں تو محبت سے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں اور پاؤں سے بلند کریں۔ حضرات میں شاعر نہیں ہوں اس لیے بڑی پرانی نعت ہے، لیکن ہم سب پرانے مسلک کے ہیں اس لیے کوئی نئی بات ہمیں ہے نہیں۔ ہمارا رسول وہی ہے، ہمارا قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، ہمارا کلمہ وہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے دادا بھی سنی تھے، آپ کے دادا بھی سنی ہیں، ہے کہ نہیں تھے؟ ہمارے باپ دادا بھی نبی کی میلاد رچاتے رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم بھی نبی کی محفل رچاتے ہیں اور دعا ہے جب تک ہم سب کی نسلیں باقی رہے اسی طریقے سے میرے سرکار کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ہمارا مسلک بھی پرانا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب پرانے پر ہم ہیں تو میرے دوست میرے عزیزوں انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ نئی باتیں لوگ لے کے آتے ہیں، جو لوگ نیا نیا مسلک لے کے آتے ہیں، ہم لوگ نئی بات نہیں لا پائیں گے، اس لیے کہ ہم لوگ پرانا ہے تو پرانی باتیں آقا مزہ شاعر کرتا ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ادنا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اعلیٰ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، چھوٹے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بڑے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جوان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بوڑھے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کالے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، گورے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پوری کائنات کے لیے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے سردار کا چرچا میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے سرکار کا چرچا ہوتا رہا اور انشاءاللہ ہوتا بھی ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک میرے نبی کا چرچا ہوتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی میرے نبی کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اس لیے میرے سرکار کا چرچا اب آئیے وقت بہت کم ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں محبت کسے کہتے ہیں۔ حضرات جو آج ہم لوگوں نے نہیں دیکھی اپنے سرکار کو صرف سنا اتنی محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ دیوانوں کا عالم یہ ہے کہ جب یہ دیوانے نکلتے ہیں اور جب اپنے ہاتھ میں علم لے کر نکلتے ہیں چوراہے اور کوچے پر پہنچتے ہیں، ان کے جذبے کو دیکھ کر میرے دوستو ان کے جذبے کو سلام ہے، حوصلے کو سلام ہے۔ یہ دیوانے جو میرے سامنے نظر آ رہے ہیں خدا کی قسم جب اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کر میدان میں اترتے ہیں یا کسی چوراہے پر پہنچتے ہیں گلیوں میں پہنچتے ہیں ان کے جذبے کو دیکھو حضرات آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ یہ کیسے غلام ہے، ارے جب بن دیکھے عالم یہ ہے، جب بن دیکھے اس طریقے سے جذبہ ان کا یہ ہے جس اگر میرے سرکار کو دیکھ لیے ہوتے تب کیا عالم ہوتا، کیا ان کا حوصلہ ہوتا، کیا ان کا جذبہ ہوتا، کیا ان کی محبت ہوتی۔ خدا کی قسم میرے جوانوں آپ لوگوں کو سلام ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نبی کے غلامی میں پیدا کیا، نبی کا غلام بنا کر پیدا کیا۔ آئیے میں آپ کا وقت نہ لے کے میں بتانا چاہتا ہوں اسی میرے دوستوں اسی زمین پر ایک ملک ہے جس ملک کا نام یمن ہے۔ یمن کی سرزمین یعنی بڑا مشہور یمن ہے اور بڑا وفادار یمن ہے۔ یمن کو آپ لوگوں نے سنا ہے نا، ملک بڑا اچھا ہے اور بڑا وفادار بھی ہے، تب بھی وفادار تھا آج بھی وفادار ہے۔ میرے دوستو یمن وہ ہے کہ میرے دوستو جہاں جس سرزمین پر میرے آقا تشریف لائے اس سرزمین پر آپ کا جاری حکومت چل رہی ہے۔ میرے دوستو میرے عزیزوں آج کا دور دیکھ لیجئے، ہزاروں مسلمان میرے دوستو روز فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، لیکن ان دجال عرب کی سرزمین پر دجال یعنی یہودیوں کی اولاد حکومت کر رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں وہاں کی بچیاں تڑپ رہی ہیں، وہاں کی مائیں اور بہنیں رو کے مر رہی ہیں، لیکن یہ دجال حکومت جو عرب پہ آگ بیٹھا ہے حکومت کر رہا ہے یہ یزید کا اولاد ہے۔ میرے دوستوں آج تک تو نہیں کر رہا ہے، آج کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے، لیکن میرے دوستوں وہی یمن کی سرزمین ہے۔ یمن کے لوگوں نے الحمدللہ آج تک انہوں نے کہا کہ ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا، جب تک ہم زندہ رہیں گے
ऐसे अग्निशान हो रहा था। समझिए मेरी बात आप सुन रहे हैं कि नहीं, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, सलाम है उसके मन को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने फरमाया था, मुझे यमन से वफादारी की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, वो यमन है अल्हम्दुलिल्लाह। आज सालों से हजरात सारी दुनिया को ललकार के कह रहा है, ऐ लोगों ये सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने झुकेगा, अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा, अफ्रीका के सामने नहीं झुकेगा, लंदन के सामने नहीं झुकेगा, ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं झुकेगा। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, फिर भी जब तक दम में दम है तब तक इंशाअल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों के लिए जो हो सकेगा हम करते रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे उनकी हिफाजत करते रहेंगे। हमारी माएं मारी जा रही है, बहनें जलाई जा रही है, बम बारूद गिर रहे हैं। आज मेरे दोस्तों हम जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हमारी बेटियां खुशहाल हैं। लेकिन मेरे दोस्तों जरा आप गौर कीजिए, यमन की सरजमीन है, यमन की धरती है। अल्लाह अकबर, कब किस तरह से बम आता है और मेरी माँ मेरे दोस्तों माँ के या गाँव में सो जाए, ये कोई भरोसा नहीं है। उस सरजमीन की मैं बात करता हूँ, तब भी लोग वफादार थे, आज भी वफादार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान दुआ करते हैं अल्लाह ताला दुनिया में जितने मुसलमान हमारी माँ बहनें भाई मुसीबत में हैं, अल्लाह ताला इस महफिल नूर की बरकत से उनकी परेशानी को दूर फरमाए तो आमीन। खुसूसी फिलिस्तीन के लिए दुआ है, अल्लाह ताला उन्हें मैदान जंग में कामयाबी अता फरमाए, कामरानी अता फरमाए, फतह मुबीन अता फरमाए। ये अल्लाह के शेरों ने सारी दुनिया को बता दिया है, ए दुनिया वालों, अरे दुनिया की सारी ताकत तुम्हारे तरफ है, लेकिन अल्लाह की रहमत हमारे तरफ है। जो कह रहा था कि हम चंद मिनट में मसल देंगे, फलस्तीन का नाम और निशान मिटा देंगे, खुदा की कसम पूरी दुनिया के बड़े से बड़े सूरमाओं के दाग को काटना उन्हें घुटने टेकवाने पर मजबूर कर दिया है। मेरे दोस्तों ये कोई ऐसी वैसी ताकत नहीं है, ये मेरे रब की ताकत है, ये मेरे रब की इमदाद है, ये मेरे रब की मदद है। इसलिए वो 313 थे तो लरसता था समाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी, वो कम जरूर हैं लेकिन मेरे दोस्तों ईमान वाले हैं। हम ज्यादा हैं लेकिन आज हम बेईमान हैं, आज हम झूठे हैं, आज हम रियाकार हैं, आज हम मक्कार हैं। आज हम मेरे दोस्तों हमें मस्जिद का नमाजी होना चाहिए, लेकिन आज मेरे दोस्तों एक जो है पागल कुत्ते की तरह आज मुसलमान का लड़का जवान हो गया है तो मेरे दोस्तों गली में चक्कर लगा रहा है, नुक्कड़ों पर चक्कर लगा रहा है, चौराहों पे चक्कर लगा रहा है, अपनी बेटे बहनों पर नजर दौड़ा रहा है। कभी मेरे दोस्तों मेरे अजीजों शतरंज खेल रहा है, कभी जुए के अड्डे को आबा कर रहा है, कभी जो है कभी अय्याशी के अड्डे को आबा कर रहा है, कभी शराब के भट्टियों को आबा कर रहा है। ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दिया है शराब की भट्टी को आबा करने के लिए नहीं। अरे तुम अपने इस दिल को मुस्तफा की बारगाह में झुका दो, सर को खुदा की बारगाह में झुका दो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब। मेरी बात आप लोग समझ रहे कि नहीं? बहुत मेरे दोस्तों वो यमन की सरजमीन है, वहाँ से एक बादशाह चला मेरे सरकार के दुनिया में आने से 1000 साल पहले। कितना? 1000 साल पहले यमन की सरजमीन से चला यमन का बादशाह जिसका नाम तुब्बा अव्वल हुमैरी चला। जब चल रहा है तो कहा मैं सैर कर लूं, जरा सारी सरहदों को देख लूं। जब यमन से चला तो मेरे दोस्तों ये मेरे शान और शौकत से चला ना कि बड़े बड़े लोग देखकर अपनी हुकूमत सल्तनत उसे दे देते। इतनी बड़ी फौज लेके चला। आप थोड़ा वक्त दीजिए, घबरा तो नहीं रहे हैं। यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हुमैरी जब चलता है तो हजरात 1,30,000 घोड़सवार, कितने? 1,30,000 घोड़सवार और 1,20,000 पैदल चलने वाले। कितने? 1,20,000 पैदल चलने वाले, 1,30,000 घोड़सवार, 12,000 वलमा,
یہ اتنے لوگ میرے دوستو اب سوچئے کتنی بڑی فوج ہو گئی. بادشاہ لے کے یمن سے چلتا ہے, حضرات جب یمن سے چلتا ہے جس جگہ پہنچتا ہے ہجوم ہو جاتا ہے, یعنی ہجوم لگ جاتا ہے, جلسہ لگ جاتا ہے. لوگ ان کی جو بڑی تعظیم و تکریم کرتے ہیں, بڑا ادب و احترام کرتے ہیں, یعنی کہ بڑے شان و شوکت سے جائے یا جہاں پہنچتے تھے میرے دوستو بہت بڑا مجمع ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے یمن کا بادشاہ تقوی اول حمیری آ چکے ہیں. اللہ اکبر, قربان جائیے. جب تقوی اول حمیری جہاں پہنچتے تھے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے. حضرات خوف اتنا ہوتا کہ کتنے لوگ اپنی حکومت تک دے دیتے تھے کی وجہ سے یہ اتنے شان و شوکت سے چلے. حضرات چلتے رہے, گھومتے رہے, چلتے رہے, گھومتے رہے, چلتے رہے, گھومتے رہے. جہاں جاتے تھا ان کی عزت ہوتی, جہاں جاتے لوگ بھیڑ لگا لیتے, جہاں جاتے ان کی بہت زیادہ لوگ عزت اور خدمت کرتے تھے. بادشاہ بہت خوش ہوتا کہ میں جہاں جاتا ہوں, جس ایریا میں جاتا ہوں, لوگ بڑی بڑی جماعت لے کر آتے دیکھنے کے لیے کہ یمن کا بادشاہ آیا, تقوی اول حمیری آیا ہوا ہے. لوگوں کا بہت بڑا مجمع ہوتا. مثال کے طور پر اگر یہاں پر وقت کا پیم آ جائے کہیں آس پڑوس میں تو لوگ سن کر کتنے لوگ بھیڑ لگ جاتی ہے, دیکھنے لگتی ہے, دیکھنے کے لیے لگ جاتی ہے. ویسے لوگوں کا مجمع لگتا, لوگ اس کو دیکھتے, اس کی عزت کرتے. بہرحال وہ دیکھتا رہا, گھومتا رہا, ملتا رہا, چلتا رہا. حضرات دیکھا کہ ہر جگہ عزت میں نہیں ہے, لوگ اس کے نام کا دم بھرتے ہیں, لوگ اس کا احترام کرتے ہیں, لوگ اس کی عزت و قدر کرتے ہیں. کئی لاکھ لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی تقوی اول حمیری کے شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے. لیکن دیکھتے دیکھتے میرے دوستوں جب جہاں مکہ شریف کے اندر پہنچا, کہاں پہنچا, جب مکہ شریف کے اندر پہنچا, مکہ کی سرزمین پر پہنچا, تو میرے دوستوں جب سرزمین مکہ شریف میں پہنچا نا, نبی کے آنے سے 1000 پہلے, میرے سرکار کے آنے سے 1000 پہلے جب وہ مکہ شریف میں پہنچا تو میرے دوستوں اس کو کوئی دیکھنے نہیں آیا, کوئی ملنے نہیں آیا, کوئی پوچھنے نہیں آیا. بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا. یہ زمینوں کو میں نے دیکھا, یہ ملکوں میں میں نے گھوما, لیکن ہر جگہ لاکھوں لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آتے, مجمع لگ جاتا, لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی, لوگ میری عزت و قدر کرتے, مجھ سے ملنے کے لیے آتے, مجھے دیکھنے کے لیے آتے. یہ کون سی سرزمین ہے کہ یہاں ایک آدمی مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا, میرے جو ہے مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا. تو کچھ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ تقوی اول حمیری, آپ کو پتہ نہیں ہے, کہا کیا ہوا, یہ کون سی سرزمین ہے, کہا آپ کو معلوم نہیں ہے. میرے دوستوں کہا نہیں, کہا یہ یہاں خانہ کعبہ ہے, یعنی یہاں اللہ کا گھر ہے. کیا ہے, یہاں اللہ کا گھر ہے, یہاں خانہ کعبہ ہے. تاریخ بتاتی ہے جب انہوں نے کہا یہ خانہ کعبہ ہے, یہاں اللہ کا گھر ہے, اللہ اکبر, یہاں اے بادشاہ تیرے پاس لوگ تجھے دیکھنے کی بات کرتے ہو, تیرے پاس مجمع لگانے کی بات کرتے ہو, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں خانہ کعبہ ہے. ارے جتنی فوج لے کے تو آیا ہے, یہ اتنا تو یہاں لوگ آتے جاتے ہیں, اتنا تو اللہ کے گھر کے خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں لوگ, خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں لوگ. جتنی شان و شوکت سے آیا ہے, جتنی فوج لے کر آیا ہے, یہاں تو برابر لوگوں کا آنا جانا ہے. کیوں, کہا اس لیے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. تقوی اول حمیری نے کہا اس لیے یہاں مکہ کے لوگوں کا اتنا گھمنڈ ہے کہ تقوی اول حمیری یمن کے سرزمین سے آیا, اسے دیکھنے کوئی نہیں آیا ہے. خانہ کعبہ کی وجہ سے گھمنڈ ہے, تو خانہ کعبہ کو اینٹ سے اینٹ میں بجا دوں گا, خانہ کعبہ کو نیست و نابود کر دوں گا, خانہ کعبہ کو توڑ پھوڑ دوں گا, خانہ کعبہ میں آگ لگا دوں گا, خانہ کعبہ کا نام و نشان مٹا دوں گا. اگر خانہ کعبہ کی وجہ سے تقوی اول حمیری کو دیکھنے کے لیے کوئی نہ آیا تو میں خانہ کعبہ کا نام و نشان مٹا دوں گا. میرے دوستوں کہنا ہے تھا, اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی, اور جب طبیعت خراب ہو گئی اچانک اس کے سر میں درد آیا, یعنی درد بہت تیزی کے ساتھ بڑھا. اللہ اکبر, پر جب درد کافی زیادہ ہونے لگا تو جتنے طبیعت کیونکہ بادشاہ
بادشاہ کے ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس جو ہے بیٹھ رہا کرتے تھے، میرے دوست وہ سب کے سب حاضر ہوئے، بادشاہ کے بار بار ایک کے بعد دوسرے حاضر ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں جتنے حکیم تھے، جتنے طبیب تھے، آتے رہے دیکھتے رہے، لیکن معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ چلا جا رہا ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک آیا دیکھا چلا گیا، دوسرا آیا دیکھا چلا گیا، بادشاہ بھی حیران ہے، دیکھنے والے بھی حیران ہیں۔ مجھے کیا ہے کہ بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا ہو گیا بادشاہ کو؟ بڑے سے بڑے طبیب آتے ہیں وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں، میرے دوست بڑے سے بڑے حکیم آئے وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ناک سے آنسو خون آنے لگا ہے، منہ سے خون آنے لگا ہے، کان سے خون آنے لگا ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں جتنے طبیب تھے سب کے سب فیل ہو گئے۔ دوا کرتے ہیں لیکن دوا کا کوئی اثر نہیں ہے، دوا پر دوا کرتے جاتے کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں تو پہ اول ہو میری کہتا ہے، اے طبیبوں کیا بات ہے، اے ڈاکٹروں کیا بات ہے، یعنی کہ تم لوگ علاج کرتے ہو، مجھے فائدہ کیوں نہیں ہوتا، آرام کیوں نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، انہی میں سے جب ایک پریشان ہو گئے تو بہت تجربے کار ایک طبیب آتے، ایک حکیم آتے ہیں، بہت زیادہ یعنی بوڑھے تھے اور بہت تجربے کار تھے۔ بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ کے جب پاس آئے تو تبا اول حمیری نے کہا کہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنے بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں نے مجھے دیکھا لیکن میری بیماری ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے، میری بیماری نہیں ٹھیک ہو پا رہی ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس جو طبیب سب سے زیادہ تجربے کار کا بوڑھا تھا، اس نے کہا اے بادشاہ سن لے، تجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، تجھے دعا کی ضرورت ہے، تجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، تجھے دعا کی ضرورت ہے۔ اگر تجھے کوئی بیماری ہوتی تو علاج کیا جا سکتا تھا، یہ تجھے جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ جس پر اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، کہا کسی اللہ والے سے دعا کرا دے تب تجھے ہو سکتا ہے سکون مل جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کسی اللہ والے کو بلایا جائے، اسی خانہ کعبہ کی بات کرتا ہوں، میرے سرکار کے آنے سے 1000 پہلے، 1000 سال پہلے کی بات ہے، تو اول حمیری نے حکم دیا کہ کسی اللہ والے کو لاؤ۔ میرے دوستو ایک اللہ کے ولی یعنی ایک پیر کو، ایک فقیر کو لایا گیا، ایک بزرگ کو لایا گیا، ایک اللہ کے ولی کو لایا گیا۔ جب اول حمیری یمن کے بادشاہ کے پاس وہ بزرگ آتے ہیں، چہرہ دیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، مسکرانے کے بعد میں بادشاہ جب دیکھ رہا ہے کہ آنے والا جو بزرگ ہے، جو اللہ والا ہے، مجھے دیکھ کر مسکرا دیا ہے، حضرات تو اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ ادھر میں بیمار ہوں اور میری حالات خراب ہے، یعنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میرے ناک سے خون آ رہا ہے، منہ سے خون آ رہا ہے، کانوں سے خون آ رہا ہے، اور ادھر یہ اللہ والا دعا کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، لیکن اس بادشاہ کو کیا پتا تھا، اللہ اکبر، شاید ایسا کھینچ رہا ہے کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، دیوانگان عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، دیدار کے لیے۔ اور شاعر کہتا ہے دیوانے کو تو سارا جہاں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیوانے کو تو سارا جہاں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ارے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ والے قریب آتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ واقعی میں نبی سے محبت کرنے والے اس زمین پر آج تو ہم ان کا کلمہ پڑھ لیے اور بعد میں آئے، کئی سالوں کے بعد میں، ہزاروں سال کے بعد میں آئے، لیکن میرے سرکار سے دنیا میں آنے کے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ جب وہ بزرگ پہنچے نا
पहुंचे बादशाह के सामने। बादशाह ने कहा कि आप हैं अल्लाह वाले? कहा हाँ। कहा कि देखो मेरी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है, इतने तबीबों को मैंने दिखाया, इतने हकीमों को मैंने दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। बुजुर्ग ने कहा बादशाह तू बावर हो मेरी, ये बीमारी नहीं है, बता तू तेरे दिल में कहीं खाने काबा के ताल्लुक से कहीं तेरे दिल में कोई बुरा ख्याल तो नहीं आया? यानी तुमने इस खाने काबा के ताल्लुक से कुछ बुरा तो नहीं कहा या बुरा तो नहीं सोचा है? मेरे दोस्तों उसको ख्याल आया कि हाँ मैंने तो अपने जबान से कहा है कि जब मक्का के लोग मुझे देखने के लिए ना आए, मिलने के लिए ना आए, मेरी शान और शौकत को सलाम करने के लिए ना आए, खाने काबा की वजह से तो मैं खाने काबा का ईट से ईट बता दूंगा, खाने काबा का नाम और निशान मिटा दूंगा, खाने काबा को तोड़ दूंगा, खाने काबा को गिरा दूंगा, खाने काबा को ढा दूंगा, ये तो मैंने कहा था। उन्होंने कहा हाँ मेरे जबान से कलमात निकले थे खाने काबा के लिए। मेरे दोस्त बादशाह ने कहा जो है उस अल्लाह के बुजुर्ग ने अल्लाह के बंदे ने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा कि सुन ए बादशाह अगर तुझे जिंदगी चाहिए तो अपने मौला को राजी कर ले, रब की बारगाह में तौबा कर ले, ये खाने खुदा है, ये खाने काबा है, तेरे जबान से निकला है ना तो तौबा कर ले। मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अपने खता का अपने गुनाहों की तो माफी मांग ले, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रोकर माफी मांग ले। अल्लाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा रहीम करीम है कि अल्लाह ताला अरे अगर तेरे गुनाह और जुर्म जमीन से लेकर आसमान से बड़े हो जाए फिर भी अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि तेरे एक कतरे आंसू के वजह से अल्लाह तेरी सारी गुनाहों को माफ कर देगा। मेरा अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान है। अब तुम अव्वल हो मेरी, मेरे दोस्त तो तौबा करता है, रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, गिरफ्तारी करता है मेरे मौला मुझसे बड़ी खता हुई, मैंने खाने काबा को गिराने की बात की है, मुझसे बड़ी खता हुई खाने काबा को ईंट से ईंट बचाने की बात की है, मुझसे बड़ी खता हुई मैं खाने काबा को जलाने की बात किया। ए मेरे मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, ए मेरी खता को माफ कर दे, ए परवरदिगार तू रहीम और करीम है, मुझ पर रहम फरमा दे, मुझे एक मौका दे दे। मेरे दोस्त जब उसके दिल से आह निकलती है, रब की बारगाह में फरियाद करता है, रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर रहम फरमा दिया और जो बीमारी थी अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा अव्वल हुमैरी को फिर वैसे जैसे तब वैसे ठीक कर दिया। अल्लाह अकबर। जब ठीक हो गया ना एकदम अच्छा हो गया। अच्छा हुआ किससे? जब तौबा किया तब। जब वो अच्छा हो गया तो कहा कि अब मैं भी खाने काबा का तवाफ कर लूं। सुभान अल्लाह। जो लाखों लाख फौज को घुमाने के लिए लेकर चला था, जिसके आगे पीछे चलते थे लाखों लोग, जिसके आगे पीछे चलते थे, लेकिन वो बादशाह खुद ही घूमने लगा, बादशाह घूमने लगा। जब खाने काबा के पास करीब पहुंचा ना, खाने काबा का तवाफ करने के लिए, उसकी नजर अल्लाह के घर पे पड़ी, खाने काबा पे पड़ी। देखिए जानकारी भी हासिल कीजिए, खाने काबा पे पड़ी। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा नहीं, खाने काबा का तवाफ तो करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह के घर पे गिलाफ चढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये दुनिया का पहला बादशाह तुब्बा हुमैरी है, जो यमन के बादशाह तुब्बा अव्वल हुमैरी है। सबसे पहले ग्रे कलर यानी काला कलर का खाने काबा पर गिलाफ, पहला गिलाफ। दुनिया में अगर कोई बादशाह है तो तुब्बा अव्वल हुमैरी है, जिसने खाने काबा पे काला रंग का गिलाफ चढ़ाया, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दिया, अल्लाह ने मुझे जिंदगी अता फरमा दी, अल्लाह ने मुझ पर करम फरमा दिया, अल्लाह ने मेरे जुर्म को माफ कर दिया, अल्लाह ने मेरे खता को माफ कर दिया। तो तुब्बा अव्वल हुमैरी ने काले रंग का गिलाफ खाने काबा पे चढ़ाया था। आज भी आप जाएंगे तो देखेंगे खाने काबा पे आपको काला ही गिलाफ, मतलब बदले जाते हर साल, लेकिन इसमें गिलाफ खाने काबा पे मेरे दोस्तों आपको काले रंग का मिलेगा। और गिलाफ चढ़ाने के बाद में वो खाने काबा का तवाफ करता है। तवाफ करने के बाद में जिसके पास तकरीबन 3 लाख से ज्यादा फौज थी, लेके उतरा था। मेरे दोस्तों अपने फौज में वापस आया और कहा मेरे साथियों कहा क्या है? कहा पूरे काबा यानी पूरे
मक्का में ऐलान कर दो, सारे लोगों को इकट्ठा करो, जमा करो, सारे मक्का के लोगों को तुपावल हो मेरी इकट्ठा करवाता, और करवाने के बाद में मेरे दोस्तों लोगों में अपने माल को बांटना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर, माल को बांट रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों असर सोने की असर रुपया बांट रहा है, और दीनार दिरहम को बांट रहा है, कपड़े को बांट रहा है। ये गला बांटा तारीख में मेरे दोस्तों, ये बात तारीख में आई है कि मेरे दोस्तों ये गला बांटा कि लोग खुशहाल हो गए। इतनी दौलत को उसने मक्के में लुटाया था, तब अव्वल हो मेरी। आज मेरे दोस्तों हम कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि इसमें मेरा बचत हो जाए, दीन के काम में लगाना है तो इसमें हम बचत तलाश करते हैं। हर जगह बोलो बचत तलाश करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों उसने कहा, अल्लाह ने करम फरमाया है अहले मदीना को, अहले मक्का को मेरे दोस्तों इतना ज्यादा बेशुमार खूब लुटाता है। लुटाने के बाद कहा मेरे सिपाहियों कहा तैयारी करो, अब यहाँ से रवाना होना है, यहाँ से निकलना है। अब लेकर तकरीबन 3,30,000 घोड़सवार, 1,30,000 पैदल चलने वाले, पास 12,000 वलवा और तुम अव्वल हो मेरी। खाने काबा यानी मक्का शरीफ से रवाना हुआ, सफर तय है, सफर करते हुए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, रेगिस्तानों में चल रहे हैं। आज से हजारों साल पहले की बात है, आज से 100 साल पहले जिस जगह जंगल था आज जंगल में मंगल हो गया है। जिस रास्ते पर लोग चलना नहीं पसंद करते थे, फिर भी आज वो जगह शहर नजर आ रहा है। जिस जगह कुत्ते टांग उठाकर पेशाब नहीं करते थे वो जिला बना हुआ है। वो लोग गलत कहता हूँ या सही कहता हूँ, लेकिन बताइए हजारों साल पहले का क्या मामला रहा होगा। रेगिस्तानों में चलते रहे, सफर करते करते तुपावल हो मेरी। एक सरजमीन पर उसकी पूरी फौज एक रेगिस्तान में पहुंचती है। तो जो 12,000 वलवा थे, बादशाह तुपावल हो मेरी से कहते हैं, ए बादशाह अब यही आप रुक जाओ, अल्लाह अकबर। जब वलवा ने कहा कि बादशाह तुपावल हो मेरी उस रेगिस्तान में उतर गया, रुक गया, कहा खेमे लगा लिया जाए। जब खेमा लगाया गया, खेमा लगाने के बाद में सब लोग, अब बादशाह ये सोच रहा है कि यार ये रेगिस्तान है, यहाँ कोई आबादी नहीं है, ये कोई मकान नहीं, एकदम बिल्कुल रेगिस्तान है, यहाँ ये वलवाई कराम ने यहाँ क्यों रोक दिया है। बहरहाल बादशाह थोड़ी देर गुजरने के बाद में बादशाह ने उन्हें वलवाई कराम को बुलाया, और बुलाने के बाद में वलवाई कराम से कहा, बताइए आप लोगों ने इस रेगिस्तान में क्यों रोक दिया है, इस रेगिस्तान में क्यों रुक गए हो, इस रेगिस्तान के अंदर क्यों रुक गए, जहाँ यानी कि सब रेतीली जमीन है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जहाँ आदमी को आने जाने से डर लगता हो, इस जमीन पर तुम क्यों रुक गए हो। तो वलवाई कराम ने कहा कि बादशाह अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। क्या कहा, मेरी माँ बहन खामोश हो जाओ। मेरे दोस्तों इसलिए इंशाअल्लाह ताला आपकी नींद भगाने वाली भी मैं तकरीर करता हूँ, लेकिन आज की रात ऐसी नहीं है। आज मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनके जो है पैदाइश की खुशी में प्रोग्राम रखा गया है, इसलिए मेन बात आपके सामने मैं बयान करता हूँ, आप समाप्त कीजिए। मेरे दोस्तों अब वलवा ने कहा, ए बादशाह अगर आपको जाना है तो जाइए, लेकिन हम लोग जाने वाले नहीं हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा, इस रेगिस्तान में क्या तुम लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने रेगिस्तान में क्या देख लिया, सब एकदम मैदान दिख रहा है, क्यों नहीं जाओगे। कहा बादशाह ने, हम नहीं जाएंगे, आपको जाना जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा क्यों नहीं जाओगे। कहा बादशाह आज रेगिस्तान दिख रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ एक शहर बनेगा, एक शहर बसेगा, एक शहर आबाद होगा, उस शहर का नाम होगा यसरब। क्या होगा। बादशाह नबी के आने से 1000 साल पहले की बात है। उन वलमाओं ने कहा, ए बादशाह है यमन के शहंशाह, एक अभी तो ये रेगिस्तान है, एक वक्त ऐसा आएगा एक शहर बसेगा, लोग बसेंगे और उसका नाम यसरब होगा। जब वो यसरब होगा, एक वक्त फिर आएगा कि इस जमीन पर मोहम्मद अरबी के कब्र रखेंगे, उनके कदमों की बरकत से यसरब से मदीना बन जाएगा, ये शहर मदीना होगा, आशिकों का मस्कन होगा। शायर ने क्या खूबी अंदाज में नक्शा खींचा है, अपना सब कुछ गुंबद खसरा कल भी था और आज
آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مچھر کے کہہ گیا اپنا سب کچھ گنبد خضرا، ارے کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آپ بھی کہہ دیجئے اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا، ارے کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، ارے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور آج بھی ہے۔ اللہ اکبر کہا تھا یہ کیسے آئے گا کہ اس زمین پر محمد عربی آئیں گے، رسول پاک آئیں گے، ان کے قدموں کی برکت سے یثرب سے شہر مدینہ بنے گا۔ یہ بادشاہ ہم جانے والے نہیں ہیں۔ تو بادشاہ تباہ الحمیری نے کہا ان کی خوبی بیان کرو، ان کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ۔ علماء نے کہا اللہ اکبر وہ نبی آئیں گے جو رحمت للعالمین بن کر آئیں گے، وہ محبوب آئیں گے جس سے ہم نہیں آپ نہیں بلکہ جو دنیا بنایا وہ خدا بھی محبت کرتا ہے، وہ رب کا محبوب ہے۔ ان کے بارے میں شان بیان کرتے ہیں اللہ اکبر، وہ ہے جن کے بارے میں کہا جائے گا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، ارے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر انہوں نے کہا تبا اول حمیری نے کہا اور بیان کرو، اور بیان کرو، خوبی بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ سنو نبی وہ ہیں، امام الانبیاء وہ ہیں جن کے قدموں سے یہ شہر مدینہ بنے گا۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ من اللہ اکبر وہ حدیبیہ کے مقام سے اپنے انگلی کا اشارہ کر دیں گے تو ڈوبا ہوا سورج واپس ہو جائے گا۔ میرے نبی کی خوبی یہ ہے کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے ارے چاند اشارے سے ہو چار، ارے اندھے نجدی دیکھ لیتا خط رسول اللہ کی، طاقت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر کہا اور نبی کی خوبی بیان کرو۔ تو پاول حمیری نے کہا علماء سے نبی کی خوبی بیان کرو۔ کہا نبی کی خوبی کیا بیان کرے میرے دوست، میں ہم لوگوں کی زبان میں وہ طاقت نہیں کہ ہم نبی کی خوبی بیان کریں۔ ارے میرے نبی وہ ہیں، میرے رسول وہ ہیں کہ اپنے زلف شریف کو، کس کو؟ اگر اپنے رخ سے اپنے بال مبارک کو جس کو زلف شریف کہتے ہیں، اگر زلف شریف کو میرے سرکار ہٹا دے تو خدا کی قسم جو چاند آسمان میں چمک رہا ہے اسے شرم آ جائے گی میرے نبی کا چہرہ۔ اللہ اکبر شاعر نے نقشہ کھینچا ہے رخ سے زلفوں کو ہٹا دے تو کمر شرمائے، کمر مانے چاند ہوتا ہے۔ میرے سرکار کی خوبی یہ ہے رخ سے زلفوں کو ہٹا دے تو کمر شرمائے، رخ سے زلفوں کو ہٹا دے تو کمر شرمائے، مسکراتے تو اندھیرے میں شہر ہو جائے، مسکراتے تو اندھیرے میں شہر ہو جائے۔ اور نبی کی خوبی بیان کرو، اور رسول کی خوبی بیان کرو، اور رسول کی خوبی بیان کرو۔ تو میرے دوست بیان یہ کرتے ہیں کہ اگر ابو جہل جیسا
जालिम इंसान अपने मुट्ठी में कंकरी लेकर आ जाए और कह दे मेरे मुट्ठी में क्या है, तो मेरे नबी की शान ये है कि उसके मुट्ठी से कंकरी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगेगी, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने लगेगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे अजीजों, शायर ने नक्शा खींचा है, अच्छे अंदाज में खींचा है। आप लोग घबरा तो नहीं रहे हैं? सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त अर्ज कर रहा था, कहा मेरे सरकार की खूबी और बयान करो, सरकार की खूबी और बयान करो, इमाम अल-अंबिया की खूबी और बयान करो। अल्लाह अकबर। वो बयान करते हैं कि वो रब के महबूब हैं, वो रब के महबूब हैं कि अगर मूसा यानी कि वो रब के महबूब ऐसे। मेरे नबी की खूबी ये है, मेरे नबी की खूबी ये है कि अगर हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोई दूर पर रब से बात करने के लिए जाए तो अल्लाह कह दे कि ऐ मूसा अपने नालैन यानी जूती को निकाल कर आओ, तब कोई दूर पर चढ़ो। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे महबूब आसमान पर अल्लाह के पास लामका में जाएंगे, नालैन पाक की पर्वतें चांद और सूरज को लुटाएंगे। जिनके जूते का सदका चांद को मिलेगा, चांद को लुटाएंगे, सूरज को लुटाएंगे। वो कोई और नहीं, वो मोहम्मद अरबी हैं, वो मेरे सरकार है, अहमद मुख्तार है, नबियों के ताजदार हैं। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए आप तमामी हजरात बड़े अच्छे अंदाज में इससे आप समाअत फरमाइए, बड़े प्यारे अंदाज में समाअत फरमाइए। वो मेरे सरकार है। अल्लाह अकबर। कहा और खूबी बयान करो, कहा कि सुनो मेरे सरकार की खूबी ऐसी होगी, मोहम्मद अरबी की खूबी ये हमको आज भी ना सुनते हैं। मेरे सरकार दुनिया में आए नहीं तो उससे 1000 साल पहले की बात करता हूँ, तो पावल हुमैरी ने कहा अपने नबी की खूबी और बयान करो। कहा नबी की खूबी ये है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी ये देखो कि अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अरफात में कदम रखा तो उनके कदमों की बरकत से अरफात पाक हो गया, मैदान अरफात पाक हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुकाम इब्राहिम पर कदम रखा तो मुकाम इब्राहिम पाक हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आबे ज़मज़म के कुएं पर पांव रगड़ा तो आबे ज़मज़म को अल्लाह ने पाक कर दिया है। और जब सफा मरवा पर हजरत हाजरा ने कदम रखा है तो अल्लाह ताला ने सफा मरवा को पाक कर दिया है। तो सुनो वो है आदम है, उनका कदम पड़ा तो मनसा जो है मिना पाक हुआ, अरफात पाक हुआ। सुनो हजरत ईसा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो है, कदम रखा तो आपने अपने ज़मज़म को पाक कर दिया। और सुनो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुकामी इब्राहिमी पर कदम रखा तो वो पाक हो गया। मेरे नबी की शान ये है कि जब मेरे सरकार मक्के में आएंगे, आमिना के घर में आएंगे, हजरत आमिना के आंगन में आएंगे, अपने माँ के शिकम से जमीन पर जब अपने पेशानी को रखेंगे तो मेरे सरकार जब जमीन पर आ जाएंगे, पेशानी रख देंगे, अल्लाह सारी जमीन पाक हो जाएगी। वाकई में हज़रात मोहतरम मेरे नबी ने कदम रखा, सारी जमीन को अल्लाह ने पाक कर दिया। आज जहाँ चाहो जहाँ मस्जिद बना लो वहीं पर अल्लाह की इबादत करो। ये किसी और का सदका नहीं, मेरे नबी का सदका है। और मेरी बात आप समझ रहे हैं तो सुभान अल्लाह कहते रहे और आगे आप तमाम हजरत सुनते रहे। अल्लाह अल्लाह। जब दुआ उगल हो मेरी सुनता रहा इसके दिन में मेरे दोस्तों मोहब्बत और प्यार और लगन और चाहत को देखकर मेरे दोस्तों उसकी आंखें अश्कबार हो गई, उसके सीने में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई। मेरे दोस्तों उसके दिलों के अंदर नबी की मोहब्बत का तूफान उमड़ रहा है। वाकई में जब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो जो नबी को देखेगा वो कैसा लगेगा। शायर ने नक्शा खींचा है इसी अंदाज में, इसीलिए तो हम सुनने पड़ते हैं बड़े प्यारे अंदाज में कि जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खसरा, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खसरा, हंसी गुंबद खसरा, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खसरा, हंसी गुंबद खसरा, हंसी गुंबद खसरा।
लफ्ज कैसा लगेगा। उनकी मोहब्बत को जुब्बा अव्वल हुमैरी ने समात किया है, मोहब्बत उसकी बढ़ गई है, चाहत बढ़ गई है। अल्लाह अकबर। मौलवा ने कहा कि सुनो, ये जुब्बा अव्वल हुमैरी ने कहा बताओ तकरीबन नबी को आने में यहाँ कितना वक्त बाकी है। कहा तकरीबन 1000 साल के बाद में मेरे नबी आएंगे। कितने साल के बाद में? 1000 साल के बाद में आएंगे। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा 1000 साल कैसे तुम जिंदा रहोगे? मेरी माँ बहने आवाज कम करें, मेरे भाई आप लोग भी मेरे तरफ देखें। इंशाअल्लाह आप लोग बड़ी मेहनत और मशक्कत किए हैं और मोहब्बत से सुन लीजिए। तो बाबर हुमैरी ने कहा कितने साल बाकी है नबी के आने में? तो क्या कहा अभी तकरीबन 1000 साल बाकी है। कितने साल? 1000 साल बाकी है। तो बाबर हुमैरी ने कहा 1000 साल तुम मदीने में बैठकर यानी इस रेगिस्तान में तुम इंतजार नबी का करोगे 1000 साल की जिंदगी। उन्होंने कहा 1000 साल को जीने कैसे जियोगे? 1000 साल अभी 1000 साल के बाद में आओगे। उन उलमाओं ने कहा कि सुनो उनके याद में हम पूरी जिंदगी यही गुजार देंगे। तो बाबर हुमैरी अगर भले हम जिंदा न रहे, भले हमारी मौत आ जाए, उनकी मोहब्बत को देखो, मेरी मौत आ जाए इंतजार करते करते, अगर मैं दुनिया में न रहा, मुस्तफा जाने रहमत को न देख सका, अगर मेरी मौत आएगी तो इसी सरजमीन पर हमारी कब्र बनेगी। जब मेरे आका आएंगे, मेरे दादा आएंगे, मेरे मुस्तफा आएंगे, मदीने वाले आएंगे, मुस्तफा जाने रहमत की तशरीफ आउरी हो जाएगी। भले हम देखें ना देखें, अरे मेरे मुस्तफा चलेंगे। अगर कहीं मेरे नबी की जूती मेरे कब्र पर पड़ गई तो मेरे कब्र में मेरी मेराज हो जाएगी। और ये मुझे यकीन है कि मरने के बाद में मेरे मुस्तफा के अगर जूते पड़ गए इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम उनके नाम पर पूरी जिंदगी यही इंतजार करेंगे, पूरी जिंदगी इंतजार करेंगे। अल्लाह अकबर। उनका अकीदा बोल रहा है, उनका ईमान बोल रहा है, उनका तड़प बोल रहा है। आवाज साथ नहीं दे रही इसलिए कि 2 दिन से इस गले बड़ा खर्च हुआ है, आवाज साथ नहीं दे पा रही है। लेकिन आप लोग मोहब्बत से सुन लीजिए। उनका अकीदा उलमाओं की मोहब्बत को देखो, खुलूस को देखो, उनका ईमान क्या बोल रहा है। कह गया रसूलुल्लाह को बयान करो। अल्लाह का ईमान बोल रहा है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, 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 जिंदगी है नबी के लिए। समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बावल हो मेरे दोस्त खुशी से मचल उठा का ठीक है। आप लोग रहना चाहते हो कहाँ? हाँ हम लोग खर्च करते हैं तो कहते हैं कि ऐसा है कि 100 रुपया छुट्टा करा लाओ 10 लाइन इनाम दी। हम लोग सोचते यही है ना। एक का मतलब अगर बढ़ के नोट चली जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन नबी के नाम पर लुटाने वाले आशिकों का 1000 साल पहले का मामला क्या है। तो बावल हुमैरी यमन का बादशाह ने कहा आप लोग रुकना चाहते हो? कहा हाँ। कहा कि यार रुकना चाहते हो तो हम पूरा व्यवस्था कर देते हैं। उसने 300 मकान बनवाए। कहते सुभान अल्लाह। कहा नबी के गुलामों नबी की मोहब्बत में रुके हो तो ऐसे नहीं, 300 घर उसने बनवाया। उन 300 घरों के अंदर यानी 300 घर में एक घर यानी सब एक मंजिले का बनवाया और एक घर 2 मंजिले का बनवाया। 6 मंजिले का
तो पागल हुमेरी ने 300 मकान बनवाए नबी के आने से 1000 साल पहले। बताओ कितना खर्च किया होगा। अल्लाह अकबर। कहा 300 घर बनवाया और उन 300 घर में एक घर डबल मंजिले का और सारे घर एक मंजिले का। उसने एक लेटर लिखा, एक खत लिखा और खत लिखने के बाद में उसमें जो सबसे बड़े आलिम थे उनके हवाले कर दिया और हवाले करने के बाद में कहा देखो ये 300 मकान आप लोगों के लिए इसलिए कि आप लोग नबी का इंतजार करोगे, सरकार का इंतजार करोगे। ये 300 मकान आप लोगों के लिए है, इसमें आप लोग रहिए। खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, पूरी जिंदगी गुजारने की पूरी जिंदगी का इंतजाम वो बादशाह हुमेरी दिया है। उसके बाद में कहा अब तुम्हारे खाने का इंतजाम है, कपड़े का इंतजाम है, पूरी जिंदगी खाओगे तो ये तेरी दौलत देके जा रहा हूँ कि खत्म नहीं होगा, इसलिए कि इस दिन में मुस्तफा का प्यार है। ये तेरी दौलत दे रहा हूँ, तुम लोग खाओगे, खत्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। कहा फिर ये तो इंतजाम हो गया। फिर बादशाह शहर को गया है, 300 लौटियों को खरीदा है। नेक लौटी गुलाम यानी उस जमाने में लौटिया गुलाम लड़कियां बिकती थी। 300 लौटियों को खरीदा है और खरीदने के बाद में कहा एक यानी जितने उलमा रुकने वाले थे उन 12,000 में से 300 उलमा जो एकदम पे पूरी जिंदगी रहेंगे, उन 300 उलमाओं के साथ में उन 300 लड़कियों का अक़द निकाह करता है कि अपनी जिंदगी खुशहाली से जो बोलो वो भी एक नबी का आशिक के पागल हुमेरी है। आज हम 10 रुपया कोई चंदा मांगने जाता है मिलाद शरीफ है, कितने लोगों का चेहरा चहरा गया, कितने लोगों की नानी माई दादी याद आने लगती है कि इसने क्या मांग लिया। आप 500 दे दो, डॉक्टर को दे दिया 5,000 रुपया रिपोर्ट कराने के लिए, तकलीफ नहीं हुई। मेरे नबी के मिलाद सजाने में 500 रुपया देने के लिए उसका कलेजा फट रहा है, मेरे दोस्त को देने के लिए तैयार नहीं है और अब मान रहा है कि मैं नबी का बहुत बड़ा आशिक हूँ। अरे आशिकों का देखो मामला ये है, 1000 लुटा देते हैं फिर भी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं लुटाया है। अल्लाह अकबर। अरे लुटाने की बात तो छोड़ दीजिए, अपने औलाद को लुटा दिए, अपने लुट गए और इस्लाम को हम तक पहुंचा दिया। आज तक लोग लुटाते ही तो चले आए हैं, हम ही सिर्फ बिरयानी खाकर सोते हैं, बकरा खा के सोते हैं, वलीमा में मस्ती करके सोते हैं। मेरे दोस्तों कहीं अगर दावत मिल जाए हकीके की तो आदमी टाइम को टाइम नहीं देखता है, पहुंच जाता है। बगल में मस्जिद है उसे तौफीक नहीं होती है और 50 किलोमीटर बकरा खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए वो यहाँ से तैयारी करके चला जाता है। इधर अल्लाह का मेहमान 5 वक्त मुझे दावत दे रहा है, वो तेरे समझ में नहीं आता। तेरा दुनिया के रिश्तेदार एक फोन कर दिया कि हाँ मेरे यहाँ हकीका है, अगर बारिश हो गई तो बारिश में भी वो पहुंचने की कोशिश करेगा कि मैं मुझे हकीके में जाना है। और इधर अल्लाह का मेहमान 5 वक्त बुलाता है, मुसलमान बगल में एकदम पड़ोस में है, अल्लाह के घर से आने के लिए तैयार नहीं है और हम बनते हैं कि हम बहुत बड़े आशिक बोले तो भरते कि नहीं भरते हैं। आखिरी बात समाप्त कर लीजिए। जो पागल हुमेरी ने कहा अब शादी भी आप लोगों की मैंने करवा दिया, मकान भी बनवा दिया, दौलत तो इतने पूरी जिंदगी आप भी खाओगे, आपकी औलाद खाओगे, खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ मेरा जो काम कर देना। तो पागल हुमेरी ने क्या कहा, मेरा जो काम कर देना। फर्स्ट काम ये कि जो उसने लेटर लिखा उस जो बड़े आलिम थे उनके हवाले कर दिया कि ये लेटर तुम ले लो और देखिए तमाम जितने मैंने मकान बनवाए एक मंजिले का है, एक मकान डबल मंजिले का है। जो डबल मंजिले का है वो मैं अपने नबी के लिए बनवा के जा रहा हूँ। किसके लिए जा रहा हूँ? मैं अपने रसूल के लिए बनवा के जा रहा हूँ, आका के लिए बनवा के जा रहा हूँ, इमामुल अब्बा के लिए बनवा के जा रहा हूँ। आपने कहा कि जब सरकार आ जाएंगे तो ये हबीबी भी हवाले कर देना, ये खत भी मेरा दे देना, ये मोहब्बत तो देखो, हकीकत तो देखो, ये सब कुछ है। तो पागल हुमेरी का ईमान बोल रहा है कि कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर।
राहों पर। कहा ये दो काम कर देना कि एक तो ये हवेली हवाले कर देना और ये खत हवाले कर देना। उस वलमा से कहा, देखो आखिरी बात है, उस वलमा से कहा आप अल्लाह के बरगजीदा बनते हैं, मेरे आका की मोहब्बत में इसमती इसी शरफ आपको ये शरफ बस गया ना। और लेकिन याद रखो अगर हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो इस खत को दे देना, अगर तुम्हारी जिंदगी में ना आए। मेरे भाई आप लोग मेरे तरफ देखे पता नहीं कहा, अरे इस महफिल में भी शैतान आ जाए तो मेरे दोस्तों नामुमकिन है जहां मेरे नबी की बात चल रही हो आप लोग मेरे तरफ आ जाए। आपकी बात का बयान करके इंशाअल्लाह सलाम वसलाम, इसलिए मुझे जब तकरीर करने के लिए बैठाइए तो कम से कम मुझे 2 घंटे का वक्त दीजिए तब बयान हो। अब आप लोग जिस वक्त खत्म होना चाहिए उस वक्त आप लोग बैठाओगे तो मूड बना रहता है, नींद आ जाती है, वो भी बिगड़ जाता है। हजरात में नींद एक नींद मार लिया से रूम में और उधर प्रोग्राम अभी चलता रहा। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों मेरे अजीजों में कहीं जाता हूँ घड़ी देख के तकरीर नहीं करता हूँ, लोगों का चेहरा देख के तकरीर करता हूँ। आखिरी बात समाप्त कर लीजिए। तो पागल हुमैरी बादशाह यमन ने कहा कि देखो ये हवेली, देखो ये खत है, अगर तुम्हारी जिंदगी में सरकार आ जाए तो ये खत मेरा दे देना, अगर नहीं आए तो मरने से पहले अपने औलाद को बुलाना, वसीयत कर देना मेरे बेटे ये यमन के बादशाह की बहुत बड़ी अमानत है, ये जो कोठी है ये कोठी इसमें आप रहिए जो सबसे बड़े आलिम थे, ये कोठी है ये आप इसमें हवेली में रहिए, ये मेरे नबी को दे देना, ये खत दे देना। अगर आपकी जिंदगी में ना आए तो अपने औलाद को वसीयत कर जाना, ये खत और ये हवेली जब भी नबी आएंगे उनको दे देना। अगर वो तुम्हारी औलाद दुनिया में उनके इंतजार जिंदगी में ना आए तो वो वसीयत अपने औलाद को कर देंगे। ऐसे 1000 साल में जब मेरे नबी मदीने में आएंगे तो ये मकान और खत तुब्बा हुमैरी का मेरे नबी के हवाले कर देना। ये मोहब्बत और अकीदत देखो, तुब्बा हुमैरी ये हवाले करके मेरे दोस्तों यहाँ से वापस यमन चले गए। वो तुब्बा हुमैरी है, अल्लाह अकबर वो नहीं है कि मैं उतना देर तक बयान कर सकूं कि उसके बाद में क्या हुआ। फिर कभी आप लोगों ने मुझे याद किया, वक्त मिला तो इंशाअल्लाह ताला मैं बयान करूंगा। ये मेरे नबी का चर्चा है, ये मेरे नबी का इश्क है, ये मेरे सरकार की मोहब्बत है। इसलिए मुसलमानों हम अपनी जिंदगी में जब भी रहें तो अपने नबी के लिए अल्लाह के नाम पर, नबी के नाम पर अपने माल को, अपने धन को, अपनी दौलत को, अपने औलाद को, अपने आप को मेरे दोस्तों तैयार रखो और यही कह के रखो ये मेरा नहीं है, या अल्लाह ये सब कुछ अल्लाह उसके रसूल की अमानत है। वक्त लगेगा अपना माल खर्च कर दूंगा, वक्त लगेगा औलाद खर्च कर दूंगा, वक्त लगेगा तो अपने भी राह खुदा में अपनी गर्दन पर पेश करूंगा। लेकिन हम लोग फेसबुकिया मुसलमान हो गए, व्हाट्सएपिया मुसलमान हो गए हैं, नेट चलाने वाले मुसलमान हो गए हैं। कहाँ हमारे अंदर इतना जज्बा पैदा होगा हो। हमारे बच्चे जब मदरसे में नहीं जाते हैं लोग कहते हैं क़यामत आएगी तो कुरान उठा लिया जाएगा, कहते कि नहीं कुरान उठा लिया जाएगा, ये क़यामत की निशानी। आज ही देखिए कुरान कितने घरों से जिन बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए वो बच्चे कुरान शरीफ छोड़कर, मान लीजिए 5 बच्चे आपके पास हैं, पांचों के पांचों बेचारे कॉलेज में जा रहे मदरसे में आ ही नहीं रहे। खान साहब का बेटा होगा कि मदरसा चाहिए, जहाँ वहाँ जाओ जहाँ 1000 रुपया फीस लगा तो 500 फीस लगा तो हम वहाँ पढ़ाएंगे। तो बताइए आपके 5 लड़के आपने कुछ भी पढ़ा दिया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया या कुछ भी आपने बना दिया, लेकिन कुरान आपने नहीं पढ़वाया तो बोलो 5 बच्चों से कुरान पाक दूर हुआ कि नहीं? उनके सीने में कुरान होता लेकिन आप लोगों ने कुरान की तालीम नहीं दिया। तो मेरे दोस्तों ऐसे धीरे धीरे वक्त तो ऐसा आ गया है कि अब तो कितने अरबिया स्कूल पर जो है मामला कैसा कैसा चल रहा है आप लोग समझ रहे हैं ना मुसलमान पढ़वाना चाहता है और ना सरकार चाहती है कि पढ़ सके। इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्तों मेरे अजीजों ऐसा दौर आ चुका है कि ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल है। कहां से हमला होगा कोई
पता नहीं है। याद रखो मुसलमानों, अपने आप को, अपने औलाद को संवारो। और मेरे सरकार फरमाते हैं कि 3 चीज हर मुसलमान अपने औलाद के सीने में डाल दे, वो औलाद पूरी जिंदगी यानी मरते दम तक इंशाअल्लाह अपने माँ बाप का वफादार होगा, दीन का वफादार होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह वो क्या चीज है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पहली अपने नबी की मोहब्बत। सबसे पहले अपने औलाद के दिलों में, सीनों में अपने नबी की मोहब्बत डाल दो। उसके बाद में अहले बैत यानी नबी के आल की मोहब्बत उनके सीने में डालो। फिर सरकार फरमाते हैं कि तीसरी मोहब्बत कुरान की उनके सीने में डाल दो। इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के भी वफादार रहेंगे और दीन के भी वफादार रहेंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इससे मोहब्बत कीजिए। फिर फुलवरिया के मुसलमान जिंदाबाद हैं। आपकी ये मोहब्बत रही, ये मेहनत रही, अल्लाह इसकी बरकतें आप सबको अता फरमाए। रात के काफी हिस्से गुजर चुके हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी आया ये बयान मेरा होता रहेगा आपके सामने। हमारे और भी बयान चलते रहते हैं इंशाअल्लाह। यूट्यूब पर भी मेरा बयान चलता ही रहता है। आप लोग भी इंशाअल्लाह ताला बयान सुनना चाहते हैं तो आप हमारे इस्लाम चैनल में, जो कि कुरान हदीस की रोशनी में रोज डेली में एक बयान यूट्यूब पे डालता हूँ, उसे भी आप समाप्त कर सकते हैं, उसे भी आप सुन सकते हैं। अल्लाह ताला ने काम करने की तौफीक अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए, नबी की मोहब्बत पैदा फरमाए, नबी की मोहब्बत पे जिलाए, दुनिया से नबी की मोहब्बत पे उठाए और फिर हमें और आपको कब्र में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।